So what is sexual reproduction? The reproduction in which the two parents are involved. One is male and other is female. So what are the other characteristics of sexual reproduction? बताओ, what are the different characteristics of sexual reproduction? Stand up. What's your name? Stop it. चलो बताओ, what are the different characteristics of sexual reproduction? हाँ जी, वो हो गया. Other than this, थैंक यू बताने के लिए, हमें नहीं पता था. चलो नेक्स्ट बताओ क्लास. हाँ, गैमीट्स फॉर्मेशन है ना, तो मेन इज गैमीट फॉर्मेशन. So gamete formation is present in case of sexual reproduction. After gamete formation is fertilization, है ना? Fertilization and then variation. Variations are present in case of sexual reproduction. Meiosis कब होती है? Meiosis takes place inside the germ cells to form the gametes. ठीक है, gametes किसके थ्रू बनेंगे? Through the meiosis. ओके, तो नेक्स्ट क्या है? वेरिएशंस होंगी और नो, हाँ नो, वही वेरिएशंस आ गई. इट्स ओके, उसने सही बताया, कोई बात नहीं. चलो वो करना है आगे, प्रोसेस तो आ जाएगा. ओके, वेरिएशन डिफरेंस. अब हमारी जो शक्ल है यहाँ, हम एकदम सिमिलर थोड़े ना अपने पेरेंट्स से, है ना. सो वी आर डिफरेंट. न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू द वेरिएशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं इस केस में कम होते हैं, है ना, देन एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, रेट ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज्यादा है इसमें. सो आपका फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स. So which is the sexual part of the plant? Flower. So flower is the sexual part of the. So what is the structure of the flower? This is your thalamus, sepals, green color. What? Okay, this is the structure of the flower. This is pedicel, thalamus, which provide base to the flower. Okay, these are sepals, the outer wall of the flower. Green colored leaves which form the outer wall of the flower. Oh, ये क्या है? ये बोला मैंने, petals. The colorful leaves of the flower. Okay, so these are the androecium. Androecium means male part, है ना? So this is the gynoecium, female part. So androecium को और क्या बोलते हैं? Stamens, है ना? So stamen is mainly divided into two parts. This lobe-like structure is known as anther, and this is your filament. Okay, so this is the structure of stamen or androecium. This is your
gynoecium or pistil. ठीक है, this is divided into three main parts. This part is known as stigma. This is style. This swollen part is known as ovary. So inside the ovary, there ovules are present. Okay, these are ovules. So inside the ovary, ovules are present, and inside the ovules, egg cell is present. Okay, here is presence of egg cell, जो female gamete है. Okay, egg cell that is present inside the ovary, inside the ovule, egg cell is present. क्या doubt है? In a bisexual flower, in spite of the young stamens being removed artificially, the flower produces fruit. Provide a suitable explanation. Provide. बता दिया. हाँ. और कुछ? हाँ जी बोलो. अब ठीक है क्लास. ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द stamen is to, what is the function of stamen inside the flower? What are pollen grains? Male gametes in case of the flowering plants, they are known as the pollens. So pollen grain formation takes place inside the anther. ठीक है, filaments का मेन काम क्या है? Just to provide the base for the attachment. ठीक है, तो जो pollen grain formation है that takes place inside the anthers. अगर आपको एग्जाम में आ जाता है what is the site of pollen formation, that means inside the anther. अगर एग्जामिनर ये पूछता है what are the site of pollen grains inside the anther, अब एंथर के अंदर कहाँ पे pollen grain formation हो रही है? inside the pollen sacs. ठीक है, एंथर को अगर आप कट करते हो तो उसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलन सैक्स. ओके, इनसाइड द एंथर, इनसाइड द पोलन सैक्स पोलन फॉर्मेशन होती है आपकी. ठीक है, सो आफ्टर एंथर का मेन फंक्शन जो है दैट इज टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स और द मेल गेमीट्स. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीमेल पार्ट? गायनेशियम का क्या फंक्शन है? To receive the pollen grains or to receive the male gametes or to produce the female gamete or the egg cell. ठीक है, egg cell is present inside the female part ना, तो to produce the egg cell or the female gamete. Okay, female gametes को हम मेगास्पोर भी बोलते हैं. मेगास्पोर. पोलन को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं बिकॉज दे आर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स ना. माइक्रो बोल देते हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फीमेल. ओके, तो फीमेल का जो आपके गैमीट्स हैं दे आर लार्जर इन साइज देन मेल्स, तो इसलिए उसे हम मेगास्पोर भी बोलते हैं. माइक्रोस्पोर. पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर. क्लियर है यहां तक? So after the formation of the pollen grains, your next step is to fertilization से पहले क्या होना है? Pollination. So basically जो आपकी sexual reproduction है वो 3 phases में होती है. Okay? So these 3 phases are, what are the different 3 phases of reproduction? In case of बच्चे, इन केस ऑफ मैं बोल रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस कौन से हैं, चाहे वो प्लांट्स का केस है चाहे वो एनिमल्स का केस है. हाँ, फर्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन होगी, फिर क्या होगा? ओके, तो इन प्रोसेसेस के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है. आपका होता है फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेकेंड इज योर pre-fertilization. Next is your
fertilization phase, last is your post fertilization. मैंने क्लास से बाहर निकाल देना, नहीं आता तभी चुप करके बैठ के सुनना ही पड़ना है। ओ सॉरी, फिर तो सुनना ही अगर आता है तो। चलो नेक्स्ट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन फेज. So in this phase gamete formation takes place. Okay, that means before fertilization. ठीक है, before fertilization क्या होगा? Formation of gametes. अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड मैचुरेशन ऑफ एग सेल. ओके, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? वही बोली, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्लास? फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइजेशन फेज. ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होना? चलो बताओ. After fertilization, okay, fertilization results into the formation of zygote. पीछे क्या हो रहा है क्लास में? What's going on? So fertilization phase में क्या होना है? Fertilization phase results in the formation of zygote. In the post fertilization events, development of the zygote or the development of the new individual takes place. ओके, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो देयर इज फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन, और अगर ह्यूमंस की या एनिमल्स की बात करते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. स्टैंड अप, बताओ, अनाउंस करो व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. स्टैंड अप, बताओ. आपको भी आता ज्यादा, आप बता सकते हो व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन? खड़े रहो आप बच्चे, बताना आपने. टर्न बाय टर्न आप जो कमी छोड़ दोगे वो उससे पूरे कर देंगे. बताओ व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस? बोलो. So after the formation, of gametes is the pollination. What is pollination? Transfer of stigma. This is your stigma. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as the pollination. What are the different kinds of pollination? Self pollination कौन सी होती है? The pollens of the same flower. Anthers of the same flower send their pollens to the stigma. Cross pollination में क्या होता है? Anthers of the different flowers or from the different plants can travel to the stigma. So यहाँ पे आपके आ जाएंगे pollen grains. So post fertilization में क्या होगा? Fusion of gametes. अब fusion of gametes कैसे होगी? Pollen grains will form pollen tube. ठीक है, they have to send the nucleus to the egg cell.
So they can send their nucleus to the egg cell only through the formation of the pollen tube. So what is the ploidy of gametes? क्या बोला आपने? So gametes are haploid. Ploidy means कितने sets of chromosomes present है inside the gametes. Okay. अगर 2 sets of chromosomes present है, that means they are diploid. Gametes के अंदर always 1 set of chromosomes is present. Except gametes, all other body cells are diploid. Okay, only gametes are haploid in nature. So pollen grains जो है आपके, pollen grains and egg cell, they are haploid in nature. Okay. So during the tube formation क्या होता है? Do you know the terms? आपको है double fertilization, triple fusion. So what is double fertilization? Fertilization तो हमें पता, that means the fusion of the nucleus of the male and female gametes. What is double fertilization? What is, वो क्या होती है? ट्रिपल फ्यूजन. दैट सो जब आफ्टर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा क्या करेगा? अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ पे सेटल हो गए हैं, आफ्टर द pollination क्या होगा? Pollen grains and stigma, they will release certain kind of chemicals to match the compatibility of the gametes. अगर gametes की compatibility match होगी, वो same species के होंगे, ये confirmation होगी, only then they will allow the pollen grains to form the pollen tube. Otherwise आपकी pollen tube formation नहीं होगी. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओके. कंपैटिबिलिटी मैच होने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है. ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन क्या होता है? अगर दिस इज योर पोलन, ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके पास एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस था. ठीक है. दिस न्यूक्लियस विल बी कन्वर्टेड, दिस न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियस. ओके. यहाँ पे क्या होगा? 2 न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा. यहाँ पे आपकी माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी. गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा आपकी मियोसिस होती है, बिकॉज मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं आपके. ठीक है. अब यहाँ पे पहले ही हाफ है, तो यहाँ पे क्या होगी? माइटोसिस होगी. थ्रू माइटोसिस इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. ओके. यहाँ तक क्लियर है? ये आपके सारे फर्टिलाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं. बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है. फर्टिलाइजेशन में fertilization is just an act of fusion of gametes. ठीक है. ये सारे आपके प्री फर्टिलाइजेशन में आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले चेंजेस हैं. ओके. So inside the ovary, ovule is present. Okay. Inside the ovary, ovule. This is the structure of ovule. एग्जामिनर की मर्जी अब. डोंट नो बच्चे, बता दूंगी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. हाँ, एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं ओवरी के अंदर. ठीक है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल ओव्यूल. ये आपका जो लार्ज साइज सेल है, दिस इज योर एग सेल. ये एग सेल है. ओके. These cells are known as antipodal cells. मीन जो आपका जायगोट बनाना है, वो किसने बनाना है? एग सेल ने. These cells are known as nurse cell. बाकी सब सेल्स ने क्या करना है? डीजनरेट हो जाना है to provide the nutrition to the developing zygote or the developing organism जो भी है. ठीक है. So this is your polar nuclei. पोलर न्यूक्लियर, दैट मीन्स सारे सेल्स जो प्रेजेंट हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. सारे सेल्स जितने भी प्रेजेंट है आपके, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर एक्सेप्ट दिस पोलर न्यूक्लियर. यहाँ पे क्या होता है? 2 सेल्स फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. द सेल्स फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल सेल, जिसे हम पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं. तो ये आपकी कौन सी स्टेज है? मेगास्पोर इज मैच्योर ओव्यूल की स्टेज कौन सी है आपकी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज.
दैट मीन्स इसमें आपके सेल 7 है, 3 + 3 6 एंड 1 सेल 7. ओके 7 सेल्ड स्टेज और न्यूक्लियाई कितने हैं आपके 8, 3 3 6 और here 2 nuclei are fused to form the single cell. ओके 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्टेज है आपकी. ओके आफ्टर अब आपका पोलन ट्यूब जब ग्रो कर जाती है, एक न्यूक्लियस क्या करता है आपका, दैट फ्यूज विद द एग सेल. जो न्यूक्लियस आपका एग सेल के साथ फ्यूज करते हैं दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ओके वो क्या करेगा, आपका एग सेल है, एक एन एग सेल का प्लस 1 एन फ्रॉम द मेल गैमीट और द पोलन न्यूक्लियस, दे विल फॉर्म 2 एन और जाइगोट. ओके जो आपका सेकंड वाला न्यूक्लियस है दैट विल ज्वाइन विद द और फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई. ओके अब पोलर न्यूक्लियाई में क्या है, 2n, इसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ओके एंड 1 will come from the male gamete and they will result into the 3n structure. This 3n structure is known as endosperm. Sperm. This structure is known as बच्चे वो humans that are only single sperm word use करते हैं. These are endosperm. ये आपका 3n बन गया. ये आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉइड. 2n करने क्यों है ही 3n का स्ट्रक्चर, इसीलिए उसे नाम दिया 2n. तो ये बन रहा है ना जाइगोट, तो ये पता ही है जाइगोट बन रहा है बच्चे. ओके हाँ दिस इज योर ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स in which 3 sets of chromosomes are taking place. Okay ये प्रोसेस जो है फ्यूजन का, फ्यूजन तो पता ना, फ्यूजन दैट मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन. ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन मींस द मेल गैमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई that results into the formation of triploid structure endosperm. This process is known as triple fusion. ठीक है मेल गैमीट गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया टू फॉर्म 3n एंडोस्पर्म. अब इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. डबल फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज 2 times fusion of gametes are taking place. Okay there is 2 times fusion of gametes. Firstly the pollen grain nucleus fuse with the egg cell and second time it will fuse with the polar nuclei. 2 बार फ्यूजन हो रही है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है. दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. देयर इज डिफरेंस बिटवीन डबल फर्टिलाइजेशन, दैट मींस 2 times fusion of gametes. Okay and triple fusion means there is formation of the triploid structure and 3 chromosomal sets are taking place or playing their role in the formation of the endosperm. Okay the result of triple fusion is the endosperm formation. And what is the result of double fertilization? जाइगोट एंड एंडोस्पर्म. अगर डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फ्यूजन हुई है, दोनों बताने हैं. ओके डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है आपका, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म. ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट आता है आपका सिंपल एंडोस्पर्म. ओके सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म. बाकी सारे जैसे जैसे आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन फेज आपका खत्म. आफ्टर दैट इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और इवेंट्स. ओके उसमें क्या होगा, आपका जाइगोट जो होगा वो डेवलप होगा, उसकी क्लीवेज होगी सेल्स की एंड इट विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, ये जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स विल फॉर्म द सीड्स. और जो आपका ओवरी वाला पार्ट होता है वो दैट स्वेल्स, स्वोलन पार्ट जो है, बता रही. अब क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ओवरी विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स. ठीक है और जो ओव्यूल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, सीड्स. तो नंबर ऑफ सीड्स किस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है ओवरी के अंदर. ठीक है नंबर ऑफ सीड्स जो फॉर्म होंगे दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी. ओके सो जैसे
अब आपको पता ही है सीड्स ग्रो करते हैं, सीड्स के अंदर जायगोट प्रेजेंट है, और एंडोस्पर्म भी कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द सीड्स, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जायगोट इनसाइड द सीड्स, है ना, सो दैट कि हम सीड्स की जो वायबिलिटी है उसका लाइफ स्पैन है उसे मेंटेन करके रख सकें, हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड्स व्हिच कैन प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जायगोट। हाँ जी, कौन सा, क्या समझ नहीं आया 3n वाला? पोलन ग्रेन ने 2 न्यूक्लियस बना दिए, एन एन, ओके। बच्चे ये पूरा पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, ओके। हाँ जी, ओके। तो ये ओव्यूल ओवरी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, स्वोलन बॉडी, उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो ड्यूरिंग द ट्यूब फॉर्मेशन जो आपका है न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा, दोनों हैप्लॉइड बनेंगे, ओके। एक ने